Dear students, welcome to another lecture of Physics class 10 on the chapter Light, Reflection and Refraction. Hope you are doing well and you are fine in your home. And in our previous two lectures of the same chapter, we have covered certain topics like introduction, reflection of light, and all these points have been discussed in the previous two videos. So in today's class, we are about to start another topic of the same chapter, that is image formation by a concave mirror. Yes, this point we will make it clear in this class along with the uses of concave mirror. So these two topics will be highlighted in today's class. So without being late, let us move to our inner topic. So these are the notes or the board work what I have done in my previous classes. So in the last session of this class, that means in the last video of this chapter, I will attach the same PDF with that video description. So if you want to use it as your reference, you can use it. So it will be provided at the last video. So in today's class, we are about to read about the image formation by concave mirror. Yes, to do so we need to follow some of the rules that is followed by concave mirror instead. So when a light actually tries to pass through concave mirror, it maintains certain geometries. Before we start discussing about the image formation of a concave mirror, we need to see such kind of geometries, what these geometries are actually. So let us assume that this dotted or the imaginary line is our principal axis. So if this is a concave mirror of us, then the back end is coated with silver. Alright, so this will be the point of pole that we say, and let us consider that this is the center of curvature, and then the midpoint joining center of curvature and the pole, as we have stated in our previous classes, is focus or the principal focus, and xy is the aperture of the mirror. Now the image formation of a concave mirror can be done maintaining certain laws or maintaining certain geometrical rules followed by light. Light are not like human beings. No, sometimes what comes in their mind, what comes in human mind, that is followed by the same human being. Suppose I'm taking a class. Suddenly after few times it may be like that I want to move around. So I'll be going out. In this way we move out. But light in its sense, it doesn't have a mind at all, and it always follows a discipline. It always follows the discipline in its life, and it always propagates in a rectilinear motion. So while following this rectilinear motion in ray optics, we say that once the light which is coming parallel to the principal axis, right after striking to the concave mirror, that is about to pass through focus. This is a general case that we can have. This is the geometry that is followed by a concave mirror, a piece of concave mirror. So this can be like rule number one. And why we are just dealing with such kind of rules? Because this rule will help us in forming the image for different object positions in front of a concave mirror. Fine. So this will be the rule number one. That means what is rule number one? That when a light ray parallel to the principal axis, which is the principal axis, this is the principal axis, I am naming it as P axis. Fine. So all the light rays parallel to the principal axis right after striking the concave mirror at a certain point, that will be passing through a certain point which we say it as focus. So this is rule number one. So in the other sense, if we say that if you allow the light ray to pass through in opposite direction, that means you are allowing the light ray, wait, let me draw the figure again. So if I draw the mirror in the same sense again, suppose this is our mirror, and this imaginary line is the principal axis, and these all are the coating that is made on the other side of the mirror. So this will be the pole, and this is the center of curvature, and this is focus. So now what do you think? What about the rule number two? So from the previous one, in rule number one, we have found that when the light rays is parallel to the principal axis, it is moving through the focus. Then the opposite case is also possible in case of light rays traveling and hitting the concave mirror. So if you allow some light rays to pass through the focus, then definitely after striking to the mirror, it will pass
it will pass parallel to the principal axis. It will pass parallel to the principal axis in this manner. So once the light ray enters through the focus and hits the concave mirror, it will pass parallel to the principal axis. Means if it is coming parallel to the principal axis, it is definitely going to pass through the focus. But if it is passing through the focus and hitting the mirror, then definitely the opposite case will be occurring. So this will be our rule number 2. This will be our rule number 2. And about the rule number 3, let's see what is this. Again, let us assume the mirror is here. Now this will be our principal axis, as we were drawing in the previous cases also, and this is our pole, and the back side is coated, which makes this as a mirror, and this is the aperture of the mirror as stated, and suppose this is the center of curvature, and then the midpoint is the focus. Now rule number 3 says, if the light ray, instead of passing through the focus, if it is passing through another point which is our C, that means center of curvature, if we allow the light rays to pass through center of curvature and fall on the mirror, if you allow the light rays to pass through the center of curvature and fall on the mirror, then the light rays right after hitting the mirror at point M, it will come back by the same path again. And why this is so? Because in our previous classes we have said that the line joining the center of curvature and any point on the mirror's surface can be the normal. And as we know that when the light ray is in the normal direction, then it obviously will reflect by the same path. And that's why the light ray which is passing through the center of curvature after hitting the mirror, definitely it has to come by the same path. So nothing a big deal is here about the rule number 3, as you can see. Very simple, all these 3 rules we have seen, and almost another rule that will be followed. Another rule that is also followed by the light rays, and that is rule number 4. To do so, let us take another mirror here. So if this is our another mirror, and this is the center, principal axis, and this is the pole, colored surface, and this is the center of curvature, and this is the focus. Then what happens, you know, once the light ray comes and falls on a point, we say pole. Once it comes and falls on the point, we say pole. So after falling on a pole, it maintains the laws of reflection. And how does it maintain? At that time, if we see that the principal axis, this P axis or the principal axis, is also joined with the center of curvature and a certain point on the mirror. Okay, so that CP can be said as the center of radius of curvature. That means all the radius of curvatures can be said as the normal to the mirror. In that sense, if we see, then CP will be the normal. In this case, the CP will be the normal. So the angle made along with CP, angle of incidence made with CP is capital I, angle I, can we say? Definitely, if this is our incident ray, if this is our I ray or incident ray, then once it falls in a point pole, then definitely CP acts as a normal, and the angle made between the incident ray and the CP will be our angle of incidence. And that geometry, that means the laws of reflection will be followed here again by making the same angle. By making the same angle, the light ray is about to come out. Sorry. The light ray is about to come out. Though my angles are not matching similar at all, but you can understand that how the light rays are coming out in this case, and this will be our R ray or reflected ray that we can say. Then what will be the point of incidence? Then point of incidence is our pole. At pole, once the light strikes, then what happens? The light maintains the laws of reflection always. That means all the light rays, they are maintaining the laws of reflection. All these light rays, means in rule number 1 also, if we say that this is incident ray and this is reflected ray, okay, all these rays, they also maintains the laws of reflection. But in case of rule number 1, if you want to find the normal, then how can you find the normal? Suppose this is the point of incidence, we mark it as O. Okay, so the line joining C and O will be the normal. Now you can see by the same geometry, it already follows that angle I is equal to angle R. So this is definite for all the light rays. In case of this rule number 2 also, if we say that this is the point of incidence, then definitely C joining the point of incidence will give us the normal. Definitely all way we will get the normal, and here also the same thing will be sustained. Angle I is equal to angle R will be maintained. So in all the sense, and here also the angle of angle I is equal to angle R. But how?
Now if you join C to M point, then definitely this is going to be the normal, and I said already that once the light ray is passing through the center of curvature and falls on the mirror, that means it is falling on the surface of the mirror normally, and once the light ray falls on the surface of a mirror normally, that should transmit back by the same path. That is in rule number 3. So all these rules will help us to draw the image formation, to find the image formation by a concave mirror. Now let's see what happens in the cases follow. If we have a mirror, suppose we have a mirror here. What kind of mirror that we have taken? This is a concave mirror. Okay, so if this is a concave mirror, and let us say that this is the principal axis of us, this is the principal axis of us. Okay, so this is the principal axis of us. Now you see in this principal axis, if we are wait a second, there was a problem with the laptop. Okay, so this back end is colored. So now we can define the certain points like pole of the mirror. This is the pole of the mirror. Okay, and here we are going to define another points, few of the points, like this is the center of curvature. Suppose this is the center of curvature, and suppose this is focus, and this is the infinity position. This is the infinity position, that means too much away from the mirror, that means too much away from the mirror. So in all these cases, maintaining these certain positions of these points, valuable points, we can define 6 positions of an object that can be used for forming the mirror in front of a concave mirror, for forming the image in front of a concave mirror. So now what can happen, we will have 6 cases here. How many cases? 6 cases for concave mirror will be seen here. But how? All these positions of the object will be found. Firstly let us find the object's position. And how the object's position will be found? Let us say that this position, if we are keeping the object here, suppose we are keeping the object here. So where we are keeping the object? We are keeping the object at infinity. Where we are keeping the object? Object at infinity. So infinity being our first point, or the first place where we can keep the object. And second point can be like, this is our first position of object where we can keep the object, and then we will analyze where the image formation is taking place. मतलब हम लोग अगर 1 नंबर पोजीशन, दैट मीन्स इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देख सकेंगे, उसके बाद हम लोग को डिफाइन करना होगा कि कॉन्केव मिरर के सामने रखने पर कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा. ठीक है. और दूसरा पॉइंट जो होगा, मतलब जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो दूसरा टाइप का इमेज फॉर्मेशन होगा, वो है हम लोगों का कुछ इस टाइप का दूरी, मतलब बियॉन्ड सी, जिसको बोला जाता है बियॉन्ड सी. ये फर्स्ट पोजीशन हो गया एट इंफिनिटी, सेकंड पोजीशन हो गया बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो बियॉन्ड सी में रखा जाए, मतलब इतना भी ज्यादा दूरी पे नहीं रखेंगे कि ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी में चला जाए. मतलब इंफिनिटी डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मतलब तो यही है ना कि हम लोग यहां से वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे. मतलब इतना ही बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन उतना बड़ा भी डिस्टेंस हम लोग अगर नहीं ले, लेकिन इतना काफी बड़ा डिस्टेंस ले कि हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या उधर चला जाए ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ ऐसा पोजीशन पे आ जाए. यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी रख सकते हो. ऑल दिस पोजीशंस सेड एज द पोजीशन ऑफ बियॉन्ड सी. ठीक है. तो ये सब पोजीशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी का पोजीशन है. तो बियॉन्ड सी में कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, इधर बियॉन्ड सी. तो हम लोग देखेंगे ये सेकंड केस में कि बियॉन्ड सी में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा. और थर्ड पॉइंट जो आने वाला है वो होगा एट सेंटर. ये होगा हम लोग का थर्ड पॉइंट ऑफ कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखा जाए ऑब्जेक्ट को, तब इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा वो हम लोग देखेंगे. एंड नेक्स्ट केस विल बी then the next case will be the object placed in between C and F. ये हो गया मेरा 4 नंबर पोजीशन, कि अगर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच कोई भी पॉइंट में रखा जाए, मतलब वो ना तो C में होगा ना तो F में होगा, लेकिन उन दोनों के बीच जो पोजीशन है उसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो, तुम लोगों का इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा ये कॉन्केव मिरर के चलते वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे. तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ पोजीशन. ठीक है. फोर्थ पोजीशन क्या बोलेंगे हम लोग, इन बिटवीन C एंड F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो कहां पे होगा फॉर्मेशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल बी दैट इफ वी कीप द ऑब्जेक्ट एट F, दैट मीन्स हम लोग अगर फोकस में रख दिया जाए, तो जैसे कि हम लोग अभी तो रख रहे थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा जाए तो कैसा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि फोकस में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो कैसा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है. वो केस भी हम लोग स्टडी करेंगे. तो वो हो जाएगा हम लोग का 5 नंबर केस. कौन सा 5 नंबर केस? और 5 नंबर केस कहां पे होगा, एट फोकस और एट F. फाइन. और जो हम लोग का लास्ट केस होगा
6 नंबर केस वो कहाँ पे होगा? बिल्कुल हम लोग कहाँ ले रहे हैं, फर्स्ट में दूरी पे रखा, फिर थोड़ा सा नजदीक लाया, लेकिन इतना भी नजदीक नहीं लाया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर चला जाए, लेकिन बियॉन्ड सी में रखा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया हम लोग का एट सी। फिर हो गया थोड़ा सा और आगे शिफ्ट किया जाए ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ बनेगा इमेज, तो वो भी जज किए, कहाँ पे रखे थे तब, इन बिटवीन सी एंड एफ। फिर थोड़ा और इसका नजदीक ले जाया गया, मतलब मिरर के और नजदीक ले जाया गया, तब जाके कहाँ बना हम लोग का इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कौन सा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर फोकस में रखा जाए तो जहां पे फॉर्मेशन होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग का जो 6 नंबर पोजीशन है वो होगा फोकस और पोल के बीच वाला पोजीशन। दैट मीन्स फोकस और पोल के बीच वाला पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या होगा, ये हो गया हम लोग का 6 नंबर पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे, इन बिटवीन एफ एंड पी। अभी आप लोगों के दिमाग में स्टूपिड सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग अगर ऐसे ही करते करते पोल पे रख दिया जाए, अगर पॉइंट को मतलब ऑब्जेक्ट को पोल पे रख दिया जाए, मतलब नेक्स्ट पॉइंट तो हम लोग का पोल होगा ना, और वो तो मिरर पे ही है, हम लोग का रियल पॉइंट है पोल, तो पोल पे अगर रखा जाए तो क्या बनेगा, तुम सट के खड़ा हो जाना। ठीक है, मिरर से तुम सट के खड़े हो जाना, ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, तो तुम क्या करना, सट के खड़े हो जाना। ठीक है, मिरर से, और देखना तुम्हारा इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तुम और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच अगर दूरी डिस्टेंस नहीं रहेगा तो इमेज भी सुइटेबली नहीं फॉर्म करता है, लेकिन पॉइंट में अगर एकदम पोल पे रखा जाए तो कहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल वहीं पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि लाइट ट्रांसमिट होने के लिए, रिफ्लेक्ट होने के लिए भी थोड़ा सा जगह का जरूरत होता है, तो वो वहां पे नहीं हो सकता। फाइनेस्ट केस जो बोलेंगे वहां पे पोल पे हम लोग का रिफ्लेक्शन फिनोमेना ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता है, तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर इमेज बन रहा है उसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इमेज अगर बनेगा तो एकदम सा कैसा बनेगा, छोटा सा बनेगा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही टाइप का बनेगा, मतलब एकदम प्लेन मिरर की तरफ बन सकता है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट के लिए हम लोग अभी जज करने वाले हैं कि इमेज कहां कहां बन रहा है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट के लिए हम लोग अभी जज करेंगे यहाँ पे। तो चलो, फर्स्ट जो है हम लोग का फर्स्ट पोजीशन वन, ये पोजीशन 1 में कहा है, ये हो गया हम लोग का एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पोजीशन 1 क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, एट इंफिनिटी में, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी में रखा गया है। तो ठीक है, क्या करना है, मिरर ड्रॉ करना है। ठीक है, मिरर ड्रॉ कर लिया, अभी क्या करना है हम लोग को, प्रिंसिपल देखना, ध्यान से देखो, ये सब स्टेप है, क्या कौन सा स्टेप है, इमेज फॉर्मेशन का स्टेप है। इमेज फॉर्मेशन मतलब रे डायग्राम ड्रॉ करने का स्टेप यही है कि पहले मिरर को ठीक से ड्रॉ कर लेंगे, और मिरर को तुम लोग को कैसे ड्रॉ करना है, कॉम्पास के हेल्प से ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ द mirror's image on a white sheet with the help of a compass, where one leg of the compass will be fixed in a certain point. That one leg you have to fix, the needle leg you have to fix in the paper, and the pencil leg you have to turn in such a way that it will be a curve. It will be a curve, and that is going to be your mirror on a white page. Fine, and the needle where you have placed and where you have fixed it, that point is going to be your center of curvature. So in this mirror we have found the middle point of the entire aperture xy as pole, and this is our principal axis, and then the middle point in between C and P will be F. And how to find the middle point? You measure the distance between C and P, and while drawing the image you just try to fix the centimeters of C and P in suitable way such that you can divide the centimeters to get the position of focus. That you have to do, you have to tackle, and you have to practice these ray diagrams. And do not forget to mention the aperture of the mirror also, as I am just drawing all these parameters related to the mirror while making its image. In the similar way you do so. Fine. So when the object will be at infinity, suppose the object is placed at infinity. Now object is placed at infinity, and that object we can see, that object is seen to us from a long distance apart. That means that object is not a smaller object to us. If we can see the object placed at infinity by our naked eyes, that means this is not a point size object, this is a enlarged, very large object that we can have. So for large object, let us draw the object's image in such a form. Okay, let us draw the image in such a form. Then the object is here, this is the object. What is this? This is the object, this is our object. So the object is kept at infinity. Now if we consider the two light rays from the head of the object, which we say it as A, suppose the head of the object is said as A and the foot of the object is said as B. Now let us find where the head of the object is forming. The head of the object will be formed how? Now all the light rays coming out from the head of the object, मतलब ये जो A point है, ये A point से अगर light transmit करना शुरू हुआ
तो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच इन्फिनिटी है डिस्टेंस, तो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस क्रॉस करते करते जो लाइट रेस आ रहा था वो ए पॉइंट से, वो दोनों लाइट रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि दो पैरेलल रेज ऐसे करते हुए आएंगे और ये दोनों पैरेलल रेज कहाँ पे हिट करेगा, मिरर पे हिट करेगा। ठीक है, ये एक लाइट रे हो गया और दूसरा लाइट रे, लेट अस टेक इन दिस वे दैट, एंड बोथ द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहां से आ रहा है, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से आ रहा है। और ये दोनों लाइट रे आने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसा होगा, कौन सा रूल फॉलो करेगा, हम लोग का एक नंबर रूल जो था वो फॉलो करेगा। एक नंबर रूल में क्या बताया गया कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल अगर लाइट रेज आ रहा है तो वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा, फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे पास होगा, फोकस से पास होगा। ठीक है, वो फोकस से पास होने वाला है। अभी दूसरा जो रे है हम लोग का, जो कि हमारा दूसरा रे है, ये रे, ये ऊपर वाला रे, ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल ही आ रहा है, तो ये भी कहां से पास होगा, ये भी फोकस से ही पास होने वाला है। कहां से पास होने वाला है, फोकस से पास होने वाला है। ये भी फोकस से ही पास होने वाला है। तो आप लोग क्या देख पाए यहाँ पे, what you have seen, we have seen from here that all these light rays which are coming from infinity object और ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया तो उसका जो हेड है, हेड से अगर दो रोशनी मतलब दो लाइट रेस ट्रांसमिट करते हुए आया, इन्फिनिटी डिस्टेंस आने के बाद, मतलब मिरर में स्ट्राइक करने के पहले उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस आना पड़ा, और इन्फिनिटी डिस्टेंस आने के टाइम में लाइट रेस क्या हो जाता है, पैरेलल बन जाता है, मतलब करीब करीब पैरेलल ही हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लिया कि उसका हेड जो था, हेड से पैरेलल लाइट रेस ट्रांसमिट होकर आ रहा था, और लाइट रेस ट्रांसमिट होकर आने के बाद जब रिफ्लेक्शन बनेगा, रिफ्लेक्शन का जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, वो दो रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ट करेगा फोकस पे, यानी कि जो हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे कंसंट्रेट हो रहा है। और जो फुट से अगर ऐसा आ रहा था, मान लो कि ये बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट है फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रे आएगा वो भी तो पैरेलल ही आएगा ना, तो वो कहां बनेगा, वो पैरेलल आ रहा है तो वो कहां पे बनेगा, वो कहां से गुजरेगा, वो भी लॉ 1 को फॉलो करेगा, रूल 1 को फॉलो करेगा, और वो भी ये फोकस से ही पास करेगा। कहां से पास करेगा, फोकस से। और फोकस से पास करने पर क्या दिखा जाएगा कि हम लोग का जो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा गया था, इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट रखा गया था, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का साइज कितना हुआ, मतलब उसका जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, फोकस पे बन रहा है, जहां पे ऑल लाइट रेस, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस मिल रहा है, वहीं पे तो इमेज बनेगा, और इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो यहां पे हम लोग अभी विचार करेंगे कि इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाला केस में पोजीशन ऑफ इमेज डिटरमाइन करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन मेरा इन्फिनिटी में है, ऊपर में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे बनेगा, वो बनेगा एट फोकस। और कैसा बन रहा है, एट फोकस, पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस, फोकस में बनेगा। और इमेज का नेचर कैसा हुआ, नेचर कैसा हुआ इमेज का, नेचर ऑफ इमेज कैसा हुआ, नेचर होगा फर्स्ट में कि इन्वर्टेड। क्यों इन्वर्टेड हो रहा है, क्योंकि यहां पे रियल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, रियल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हम लोग देख नहीं पाएंगे लेकिन इतना छोटा इमेज बन रहा है। मतलब फर्स्टली लेट अस से दैट व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्मिंग हियर इट विल फॉर्म एज अ रियल इमेज। और क्यों रियल इमेज बन रहा है, यहाँ पे इमेज इज रियल और रियल इमेज इज फॉर्मिंग। क्यों, why the image is real, because image is forming on air at point F, where if we can place a screen at F then the image we can see forming on that screen। मतलब F में अगर हम लोग यहाँ पे एक स्क्रीन लाके प्लेस कर देंगे, हम लोग अगर व्हाइट सा स्क्रीन लाके F में प्लेस करेंगे तो क्या हम लोग देख सकते हैं F पे इमेज बन रहा है, मतलब इस तरफ से अगर देखेंगे तो क्या हम लोग देख सकते हैं, इस तरफ से देखा जाए तो क्या हम लोग ये इमेज को देख सकते हैं स्क्रीन में, बिल्कुल देख सकते हैं। इसलिए हम लोग का जो ये इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल इमेज बनेगा। ठीक है, ये कौन सा टाइप का इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा ये। ठीक है, और जब भी रियल इमेज फॉर्मेशन होता है ये भी ध्यान रखना है कि लाइट का सिमेट्री ऐसा है कि वो वर्चुअल नहीं, वो इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन, इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन करेगा। कैसा इमेज फॉर्मेशन करेगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन करेगा। जब रियल बनेगा तभी इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन करना चालू किया। क्यों, क्योंकि जो अपर हैंड से जो मतलब टॉप से जो लाइट रेज आ रहा था वो लाइट रेज नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और नीचे से जो लाइट रेज आ रहा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसके चलते क्या हो गया, फ्लिप कर गया, मतलब जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट जैसा नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट का अगर हेड ऊपर हुआ तो इमेज का हेड किधर होगा, नीचे होगा, मतलब इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन करेगा। और इन्वर्टेड इमेज क्या है ये सब हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं हम लोग का प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे और क्या देखा जा सकता है, और हम लोग देख सकते हैं कि साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, साइज ऑफ
द इमेज कैसा होगा, साइज ऑफ द इमेज होगा हम लोग का हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब एकदम से छोटा हो गया, मतलब मैग्नीफाइड नहीं हुआ, जो मैग्नीफाइड नहीं हो रहा है उसको हम लोग हाईली डिमिनिस्ड बोलेंगे। और हाईली डिमिनिस्ड, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज मतलब पॉइंट में इमेज बनेगा, एक पॉइंट सा होगा जिसमें इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग को तीन चीज फाइंड करना था, जो कि है इमेज का पोजीशन, और इमेज का नेचर कैसा होगा, और इमेज का साइज कैसा होगा। ये तीन चीज हम लोग फाइंड कर चुके हैं पोजीशन 1 के लिए। तो पहला वाला केस ध्यान से समझा जाए तो हम लोग का टाइम का जरूरत है, लेकिन बाद में जो सब केस आने वाला है वो सब केस में हम लोग ज्यादा टाइम से डिस्कस नहीं करेंगे। अभी ध्यान से समझना, फर्स्ट में क्या किया है, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर लिया है इन्फिनिटी में, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया है, इन्फिनिटी में प्लेस किया है, और फिर मिरर को कहां प्लेस किया है, मिरर को हम लोग तुम लोग योर्स राइट हैंड में प्लेस किया है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आ रहा था वो पैरेलल था, वो सर्टेन रूल्स को फॉलो किया, ऊपर में जो 4 रूल बताया गया है वो 4 रूल में से कोई भी रूल फॉलो कर सकता है, और फॉलो करने के बाद इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। कहां पे हो रहा है, वही हम लोग नोट किए कि एट फोकस, फोकस में हो रहा है, ठीक है। और फिर नेचर कैसा हो रहा है, नेचर भी हम लोग नोट किया कि रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। फिर थर्ड वाला क्या है कि साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट में देखेंगे कि पोजीशन 2 के लिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया पोजीशन 2, और पोजीशन 2 में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अभी फिर से हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, मिरर ड्रॉ करना है, ठीक है। मिरर ड्रॉ हो गया, अभी क्या ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है हम लोग को फिर से। और प्रिंसिपल एक्सिस पे तो हम लोग का क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच क्या बनेगा, फोकस बनेगा। फिर से हम लोग ये सब केस फिर से उसी तरीके से कॉपी कर लिए, ठीक है। ये जो पॉइंट था उसी को हम लोग कॉपी कर लिया मानो, ठीक है। तो अभी जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अभी रहेगा कहाँ पे, यहाँ पे बियॉन्ड सी में, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग अभी फिक्स कर रहे हैं बियॉन्ड सी में। मान लो कि यहाँ पे रख रहे हैं, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस में रखा गया है, जो कि डिस्टेंस, हालांकि ये डिस्टेंस भी कुछ कम नहीं है, सी के बाहर रखा गया है। तो पोल से लेके ये फुट ऑफ द इमेज, दैट मीन्स बी पॉइंट तक ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये इनफिनाइट डिस्टेंस में नहीं रखा गया है, इसको फाइनाइट डिस्टेंस में रखा गया है। तो फाइनाइट डिस्टेंस में रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो लेट्स सी वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, मेंटेनिंग ऑल दोस 4 रूल्स दैट वी हैव स्टडीड in our case. So here firstly let us see that when the light rays coming from its head will reflect in the mirror, will fall on the mirror, when it will fall on the mirror, then what will happen, that light ray is about to pass through focus, that light ray will pass through focus. कहाँ से जाएगा, ये फोकस से ट्रांसमिट होने वाला है। और अगर ऐसा ये रूल नंबर 1 को फॉलो करके ये रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइट रे हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर दैट द नेक्स्ट लाइट रे इज पासिंग थ्रू फोकस। और दूसरा सेकेंड रूल को फॉलो करके हम लोग ये बता रहे हैं कि फोकस से अगर लाइट रे को पास किया जाए, फोकस से लाइट रे को पास किया जाए तो कहां पे बनेगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा मतलब कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अभी ध्यान से देखना कि ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, डू नॉट फॉरगेट टू नेम दिस पार्ट्स actually, and this is the curvature of the mirror, don't forget to mention these points also, okay। and अभी देखो कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे जंक्शन पॉइंट बन रहा है हम लोग का, जंक्शन पॉइंट हम लोग का जो है वो बन रहा है यहाँ पे, मतलब दो रिफ्लेक्टेड रे, और दो जो रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ पे मीट कर रहा है, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है ये वाला पॉइंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए डैश। क्यों इसको ए डैश बोल रहा है, क्योंकि ए पॉइंट से लाइट ट्रांसमिट होके आने के बाद जहां पे मिल रहा है उसको हम लोग इमेज ऑफ पॉइंट ए बोलेंगे, तो उसको ए डैश से मतलब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ए डैश पे बना हम लोग का, मतलब यहाँ पे ए डैश में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो मुंडी है, ऑब्जेक्ट का जो हेड है, हेड का इमेज बनेगा ए डैश पे, ठीक है। तो बेस कहां पे होगा, मतलब बी पॉइंट का इमेज कहां पे आएगा, ये बी पॉइंट का इमेज कहां पे आएगा, फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज कहां पे आएगा, उसका इमेज आएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस में, मतलब कहां पे आएगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हम लोग अगर मानेंगे कि बी से भी एक लाइट रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलना शुरू किया, तो वो चलने के बाद वो पोल पे धक्का लगने के बाद कहां आएगा, फिर से रिटर्न करके इधर से ही गुजरेगा,
मतलब बी से जितना भी लाइट रेस जाएगा वो सब कहां से बैक करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ही बैक करेगा फिर से। और बी में मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो भी परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा, मतलब ये बनेगा हम लोग का इमेज, ठीक है। ये नीला रंग का जो लाइन दिखाया गया है ये हो गया हम लोग का इमेज, और इमेज का हेड किधर है, डाउन नीचे की तरफ है, ये हो गया बी डैश, ठीक है, ये हो गया बी डैश। तो जो इमेज देखा जा रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ। फर्स्ट में इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। इमेज का क्या क्या चीज देखेंगे। फर्स्ट चीज देखेंगे पोजीशन, कहां पे बन रहा है, पोजीशन बन रहा है इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच ही ना बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है, मतलब इन बिटवीन सी एंड एफ। फिर जो सेकेंड पोजीशन है, मतलब सेकेंड पॉइंट जो है, जो कि है नेचर ऑफ द इमेज, और नेचर ऑफ द इमेज कहां पे है, जो कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। अगर इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, मतलब मिरर जहां पे रखा हुआ है उसके पहले बनता है, मतलब यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे हम लोग स्क्रीन अच्छी तरीके से प्लेस कर सकेंगे, और जो इमेज यहाँ ये सब पोजीशन में बनेगा, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, वो सब रियल इमेज ही होगा। तो कैसा इमेज बन रहा है यहाँ पे रियल इमेज बनेगा। मतलब अगर ये पॉइंट में जहाँ पे ए डैश बी डैश का जो इमेज है वो फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे अगर स्क्रीन रखा जाए तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग देख सकेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, मतलब स्क्रीन में ले सकते हैं वैसा इमेज को, दैट मीन्स दैट इज रियल इमेज। एंड अगर रियल है तो इसका हेड जज करो, हेड तो पहले इस ऊपर की तरफ था ना, पहले हेड कैसा था, ऐसा था, और जो इमेज का हेड आया वो कैसा हो गया, उल्टा हो गया, मतलब हेड डाउन हो गया, टॉप बटम, बटम टॉप हो गया, ठीक है। मतलब क्या केस हुआ, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड हो रहा है, ठीक है, क्या हुआ, इन्वर्टेड। और लास्टली हम लोग देखेंगे कि साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, डिमिनिश्ड, छोटा बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना बड़ा नहीं बन पाया, मतलब इंफिनिटी में जब रखा था तब पॉइंट साइज एकदम छोटा सा था, तो थोड़ा नजदीक लाया, वही ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा नजदीक लाता है तो इमेज कहां पे शिफ्ट कर रहा है, फोकस से, इमेज फोकस से कहां पे शिफ्ट करेगा, फोकस से शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है। तो ये पोजीशन में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो साइज कैसा हो रहा है इमेज का साइज हो रहा है स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा, ऑब्जेक्ट का इक्वल साइज में नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट का छोटा ही बनेगा। ये हो गया हम लोग का पोजीशन 2 के लिए इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। और अभी देखेंगे हम लोग पोजीशन 3 के लिए कौन सा इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, पोजीशन 3। और पोजीशन 3 कहां पे लिए थे हम लोग, पोजीशन 3 लिए थे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी, ठीक है। ये वाला पोजीशन देख लेते हैं, ये 3 नंबर पोजीशन हम लोग का था, ठीक है, ये वाला पॉइंट के लिए ये हो गया हम लोग का 3 नंबर पोजीशन जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। अभी फिर से हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, मिरर ड्रॉ करना है, फिर से उसी तरीके से, कोई भी मतलब परेशानी नहीं, सीधा ड्रॉ करो उसी हिसाब से। आप लोगों को कैसे ड्रॉ करना है, फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को कंपास से ड्रॉ करना है, कंपास के हेल्प से ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, पोल बनेगा, और ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, अपर्चर ऑफ द मिरर बनेगा। फिर क्या बनेगा, ये मिरर को पीछे से कलर करेंगे तभी ना रिफ्लेक्टिंग प्लेन आएगा सामने से, तो ये भी बना दिया। फिर हम लोग क्या किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड किए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला यहाँ पे, चलो इसको भी बैठा दिए, मान लो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे मिडिल पॉइंट में क्या बनेगा, फोकस बनेगा। अगर अभी देखो कि क्या है हम लोग का, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है एट सी, मतलब इस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, सी में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, और सी में जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किए वो कैसे प्लेस करेंगे, परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरली प्लेस कर रहे हैं। तो इसका ए पॉइंट कहाँ पे है, ऊपर है, ये वाला जो टिप ऑफ द एरो है वो है ए पॉइंट, और फिर बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट और सी पॉइंट एक साथ ही है, अभी देखो बी पॉइंट सी पॉइंट पे ही बैठा हुआ है, ठीक है। अभी ए पॉइंट से जो लाइट रेज आएगा, ऑल दिस लाइट रेज कमिंग आउट ऑफ ए पॉइंट, ओके, लेट अस एज्यूम दिस इज द लाइट रेज विच इज कमिंग आउट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट से आ रहा है तो रूल नंबर 1 को फॉलो करने पर वो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है, कहां से जाएगा, फोकस से जा रहा है, ठीक है। चलो हम लोग बोल देते हैं कि ये फोकस है, ये फोकस है, लेट अस कंसीडर। और फिर फोकस से अगर पास करेंगे, सॉरी, और फोकस से अगर पास करेंगे तो कहां पे बनेगा, फोकस से पास करते हैं तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, चलो जियोमेट्री को अगर ठीक से ध्यान से करोगे
यहाँ पे तो जियोमेट्री मेंटेन नहीं हो पा रहा है मेरे से, लेकिन जियोमेट्री को अगर ठीक से मेंटेन किया जाए तो ये कहाँ पे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब ऐसे बनेगा कि जो इमेज का फॉर्मेशन है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगा, वो भी सी में ही बनेगा, मतलब सी के नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। और हेड कहाँ पे बनेगा, हेड बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट दो लाइट रेस कन्वर्ज कर रहा है वहाँ पे बनेगा हेड ऑफ द इमेज। हेड ऑफ द इमेज कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे दो लाइट रेस कन्वर्ज कर रहा है वहाँ पे बनेगा हेड ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ए डैश पॉइंट। और बी डैश कहाँ पे बनेगा, बी डैश तो बनेगा बी डैश पे, बी पे ही बनेगा, मतलब वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। मतलब यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, जब हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो जियोमेट्री है वो ठीक ठाक मेंटेन नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि हम लोग जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को एज्यूम कर लिए हैं, हम जो पॉइंट किए सेंटर ऑफ कर्वेचर को, वो लॉजिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर शायद नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इमेज ड्राइंग के लिए। लेकिन आप लोग जब प्रिसाइसली ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से करोगे तब देखोगे कि एकदम एग्जैक्ट आ रहा है वो, ठीक है। ऊपर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो उसका इमेज बनेगा एकदम उसके ठीक नीचे। और कैसा टाइप का इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो चलो अभी देख लेते हैं कि ये जो इमेज है, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है। इमेज का पोजीशन हो गया, पोजीशन कहाँ पे, इमेज का पोजीशन हो गया हम लोग का एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाए तो सी पे ही पोजीशन बन रहा है, ठीक है। अगर नेचर को बोलेंगे कि नेचर कैसा है, नेचर तो फिर से है क्या, रियल, फिर से है रियल, और कैसा है, इन्वर्टेड है। मुंडी किधर है, उल्टा तरफ है मुंडी, तो ये क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट थिंग अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, दैट इज व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जियोमेट्री सस्टेन करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, ना कि उससे छोटा ना कि उससे बड़ा। ये ऐसा नहीं बनता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर पॉइंट को रखा जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो उसका इमेज ठीक इसी तरीके से बनता है जैसे कि प्लेन मिरर में बनता है। मतलब प्लेन मिरर में भी हम लोग क्या देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका इमेज भी उतना ही बड़ा बनता है, ठीक है। हालांकि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड नहीं बनता है, उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और सेम साइज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। ये जो कंडीशन है ये सस्टेन कर गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पोजीशन नंबर 3 के लिए। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया हम लोग का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको ओ मान सकते हैं, ठीक है। फिर आया हम लोग का 4 नंबर पॉइंट, पोजीशन क्या हो गया, 4 नंबर पोजीशन, पोजीशन 4, पोजीशन 4 कहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, सॉरी इन बिटवीन, प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को अगर सी और एफ के बीच में रखा जाए तो कैसे बनेगा, फिर से बनाओ मिरर, फिर से बनाओ जो हम लोग का है प्रिंसिपल एक्सिस, बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस बोल रहे हैं। ये हो गया पोल, और पीछे की तरफ कलर करना भी ज़रूरी है। पिछले वाले में कलर किए थे क्या, हाँ ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ मानेंगे, लेट अस एज्यूम दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। और जो मिड पॉइंट है हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करके नहीं ले रहे हैं, मतलब आइडिया से ले रहे हैं कि मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो फोकस यहाँ पे बन रहा है। तो अभी कहाँ पे खड़ा करेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है हम लोग का ठीक इधर, कहाँ पे, सी और एफ के बीच खड़ा करना है। और सी और एफ के बीच खड़ा किया तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ये हो गया ए पॉइंट, और ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया बी पॉइंट सपोज। तो इसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, पैरेलल लाइट जा रहा है, पैरेलल लाइट कैसे जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल से जा रहा है। और इसका कैसे आएगा, फोकस से ट्रांसमिट करेगा, फोकस से आएगा रूल नंबर 1 के मुताबिक। और फिर अगर फोकस से जा रहा है, फोकस से अगर ट्रांसमिट किया तो ये कहाँ पे आ रहा है, फोकस से ट्रांसमिट किया, धक्का लगने के बाद, सॉरी धक्का लगने के बाद किधर से आएगा, इधर जाएगा। तो कहाँ पे बन रहा है, सॉरी यहाँ पे भी जियोमेट्री मेंटेन नहीं हो पाया मेरे से ठीक ठाक। तो चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं जियोमेट्री मेंटेन करने का। जो एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट को हटा, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट करना है ठीक ठाक से। तो एफ पॉइंट जो है मेरा, मतलब इतना सा डिस्टेंस हो गया, तो एफ पॉइंट बनेगा कुछ इस पोजीशन में। अच्छा ठीक है, एफ पॉइंट बना दिया यहाँ पे। तो ये जो है ये एफ से गुजर रहा है। अभी एफ से जो गुजरेगा, एफ से जो लाइट रेज गुजरेगा वो कैसे जा रहा है, एफ से जो लाइट रेज गुजर रहा है वो कैसे जा रहा है, वो जा रहा है एफ से, फिर धक्का लगने के बाद वो कहाँ से जाएगा, ये वाला तो इधर से आया, लेकिन ये वाला कहाँ से जाएगा, ये वाला कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जाने का मतलब
इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा जहाँ पे हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर मानो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। तो इमेज जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड सी में बनेगा। इसका क्राइटेरिया कैसा होगा, इसका क्राइटेरिया ऐसा होगा कि इमेज जो है इमेज बियॉन्ड सी में बन रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इमेज बनेगा। हालांकि यहाँ पे जियोमेट्री फिर से सस्टेन नहीं हो पाया मेरा, कोई बात नहीं, लेकिन बी डैश जो पॉइंट है यहाँ पे बनेगा और ए डैश का जो पॉइंट है कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लाइट रेज है ये पैरेलली जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन रूल नंबर 2 को फॉलो करके जा रहा है, रूल नंबर 2 को फॉलो करके निकल रहा है। और यहाँ पे मीट किया, जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे ए डैश बनाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही लाइट रेज हम लोग जो लिए थे वो कहाँ से आ रहा है, ए डैश से आ रहा है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री यहाँ पे सस्टेन करेगा, तो ऐसा कुछ इमेज बनेगा। ऐसा इमेज बन रहा है तो इमेज का जो पोजीशन है फर्स्टली वो डिटरमाइन करते हैं। इमेज का पोजीशन कैसा होगा, इमेज का पोजीशन हो जाएगा, इमेज का पोजीशन हो गया बियॉन्ड सी। और फिर बताओ नेचर कैसा हुआ, फिर से नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड हुआ कि नहीं हुआ। रियल क्यों बना, क्योंकि मिरर के पहले ही इमेज बन गया, ठीक है, मिरर के सामने बना इमेज, इसलिए वो रियल, द इमेज इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड व्हाई इट इज इन्वर्टेड, बिकॉज द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज केप्ट अपसाइड एंड नाउ द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डाउनसाइड, दैट्स व्हाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्मिंग हियर। एंड थर्डली, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट के हिसाब से काफी बड़ा साइज बन रहा है। ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था ये छोटा सा था, इतना था, और इसका कितना बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट के हिसाब से बड़ा बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट नंबर केस से लेके अगर 4 नंबर केस तक देखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में था तो पॉइंट मतलब इमेज कहाँ बना, फोकस पे। फिर इसको बियॉन्ड सी में लाया गया तो वो कहाँ बन रहा था, सी और एफ के बीच। फिर सी में रखा गया तो सी में बन रहा है, और फिर मतलब सी और एफ के बीच रखा गया है तो कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी में। मतलब अपना जो पोजीशन है, इमेज और ऑब्जेक्ट अपना अपना पोजीशन क्या कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है। और कौन सा पॉइंट के बीच स्विचिंग कर रहा है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट, और जो फोकस है, यह वाला जो फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट पे के बीच अपना पोजीशन स्विचिंग कर रहा है। और पोजीशन स्विचिंग करने के टाइम में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा गया था तब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन इमेज कैसा था, छोटा था। फिर वो स्विचिंग कहां पे किया, सी पे आके, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके वो मिल गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो वो दोनों ही इक्वल साइज का बन रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के भीतर अगर लाया जाए ऑब्जेक्ट को तो इमेज उससे ज्यादा बड़ा हो रहा है। मतलब कंडीशन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसको बोलते हैं स्विचिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इमेज इन बिटवीन इन्फिनिटी टू पॉइंट फोकस, ठीक है। फोकस और इन्फिनिटी के बीच ये स्विचिंग करेगा। फिर इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग देखेंगे 5 नंबर स्टेप, 5 नंबर केस की सच्ची में स्विचिंग हो रहा है कि नहीं, वो वाला देखेंगे। पोजीशन 5, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। 5 नंबर पोजीशन कहां था, फोकस पे, कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए तो कैसे बनेगा, ठीक है। फिर से हम लोग का हो गया ये मिरर, फिर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फिर हो गया पोल, फिर हो गया कलर्ड सरफेस, फिर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बनेगा फोकस, तो ये हम लोग का हो गया फोकस। और फिर जो है हम लोग का ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, फोकस पे प्लेस करेंगे। और फोकस पे प्लेस करने के बाद इसको कैसे प्लेस किया, परपेंडिकुलरली प्लेस किया। मतलब इसका ए पॉइंट जो है ये तो ऊपर की तरफ है, और बी पॉइंट कहाँ पे है, फोकस पे ही है। बी पॉइंट कहाँ पे है, इसका फोकस के साथ साथ ही है इसका बी पॉइंट भी, ठीक है। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट रे डायग्राम अगर फॉर्मेशन करेंगे, मतलब फर्स्ट रे फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। पैरेलली आ रहा है लाइट रे, कहाँ से, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से पैरेलली आ रहा है। कहाँ पे जा रहा है, मिरर पे धक्का लगने के बाद वो कहाँ से जा रहा है, वो फोकस से जा रहा है, ठीक है। वो कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। अभी देखो, अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, अभी हम लोग को फाइंड करना है कि अगर ये जो लाइट रेस है, मतलब ए पॉइंट से और एक लाइट रे निकला और वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, पी पे फॉल कर रहा है, मतलब पॉइंट पी पे फॉल कर रहा है, तो पॉइंट पी पे क्या बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, ठीक है। और वही एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करेगा, रूल नंबर 4 के मुताबिक सेम कॉपी करने के बाद वो चलना शुरू करेगा। और कैसे चलेगा, कुछ इस हिसाब से चलेगा, कुछ इस हिसाब से चलेगा,
और कुछ इस हिसाब से चलेगा, मतलब क्या, जो लाइट रेज बन रहा है, मतलब ए से जो लाइट रेज आ रहा था, ए पॉइंट से जो लाइट रेज आ रहा था, वो लाइट रेज अभी कहाँ चल दिया, इन्फिनिटी की तरफ चल दिया, मतलब पैरेलली ट्रैवलिंग। ये जो लाइट रेज है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस बनेगा, वो डिस्टेंस कभी भी मीट करने लायक नहीं होगा, मतलब पैरेलल रेज बनेगा। मतलब ए पॉइंट से दो लाइट रेज आ रहा है, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ इस तरीके से निकल रहा है, कुछ इस तरीके से निकल रहा है कि वो लोग कभी मीट नहीं करने वाले हैं। तो मीट अगर नहीं करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन होगा क्या, होगा। क्यों होगा, अगर बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि पैरेलल लाइट रेज, अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट रेज आ रहा है कोई पॉइंट से, तो वो हम लोग के पास आते आते क्या हो जाता है, पैरेलल बन जाता है। तो हम लोग के पास से अगर दो पैरेलल लाइट रेज चालू किया जाता है, मतलब वो लोग ट्रैवल करना शुरू किया, तो वो लोग इन्फिनिटी में जाके मिलेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो वो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये लोग कहां पे जाके मीट करेगा, ये लोग जाके मीट करेगा ये इन्फिनिटी में जाके ये मीट करेगा। यहाँ पे कोई एक पॉइंट, मान लो कि ये इन्फिनिटी पॉइंट है, तो इस पॉइंट में जाके मीट करेगा, और जहां पे ये लोग मीट करेगा वहां पे क्या बनाएगा, हेड ऑफ द इमेज बनाएगा। ठीक है, हेड ऑफ द इमेज बनाएगा। और इमेज का जो साइज हो रहा है यहाँ पे, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस में ही इसका बेस बनेगा। ठीक है, बेस कहाँ पे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस का इधर ही। और ये जो इमेज बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी में बन रहा है। क्यों इन्फिनिटी में बन रहा है, क्योंकि हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज हम लोग ट्रांसमिट किए थे, वो दोनों रिफ्लेक्शन होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, दे स्टार्ट्स फॉलोइंग और दे स्टार्ट्स ट्रैवलिंग पैरेलली, एंड वी assume that the parallel light rays will meet themselves or they will converge in certain point when they will be at infinity. Okay, after traveling a distance of infinity, they will be converged in a certain point. Okay, and that point we will define as a dash here, and the b dash will be on principal axis. If we extend the principal axis till infinity, then definitely in infinity there will be a certain point which will be said as b dash, and then the image will be formed as a dash and b dash. और फिर से इस केस में भी क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन का कुछ नेचर देखा जाएगा। फर्स्टली पोजीशन अगर बोलेंगे यहाँ पे, तो पोजीशन कहाँ पे हो रहा है, पोजीशन हो रहा है इन्फिनिटी में। मतलब जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखा गया था, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखा गया था, तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। अभी फोकस पे ऑब्जेक्ट को लाके रखा गया है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी में। यही ना बोले थे कि शुरू में क्या बोले थे कि लाइट जो है वो डिसिप्लिन फॉलो करता है। ठीक है, कुछ डिसिप्लिन, कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न्स, जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस को फॉलो करके फिर अपना चलता है। फिर नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज हियर, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल, obviously real. If you can take a screen to the infinity, then definitely you will get it. Why? Because it is forming in front of the mirror. मिरर जो है, मिरर के इन फ्रंट में बन रहा है, मिरर के इन फ्रंट में बन रहा है, मतलब क्या, इन्फिनिटी में बनेगा, तो भी हम लोग इसको रियल इमेज ही बोलेंगे। ठीक है, और रियल बन रहा है, इसके साथ साथ कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऊपर की तरफ, और हेड ऑफ द इमेज कहाँ पे है, नीचे की तरफ, मतलब ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, और साइज कैसा हुआ, ऑब्जेक्ट का साइज तो इतना सा था, ठीक है, और वो मैग्नीफाई हो गया है, इन्फिनिटी में जाते जाते उसका साइज कितना बन गया, बहुत सा बड़ा। ठीक है, तो साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया अभी, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ऑल दिस वेयर द फाइव पोजिशंस वेयर वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट टू गेट इट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए हम लोग 5 टाइप का इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो सब हम लोग देख चुके हैं। अभी छठवां पॉइंट हम लोग का बाकी रह गया, और छठवां पॉइंट में आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट भैया। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ट्विस्ट ये छठवां पॉइंट में आ रहा है। पोजीशन 6 के लिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे, छठवां पॉइंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, और सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो कैसे बनेगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। ये फिर से हो गया मेरा मिरर, फॉर्मेशन हो गया मिरर, नहीं, इसको भी थोड़ा सा सामने ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, फिर से हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, फिर से हम लोगों को ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस। वी हैव टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस अगेन, and then we have to name it as principal axis, p axis. Okay, and then this will be point pole, and this is the back end of the mirror, which surface we actually polished, and then center of curvature will be here, and following that focus will be here. Now where the object is kept, the object is kept at in between pole and focus. कहाँ पे बन रहा है, पोल और फोकस पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच बन रहा है। वेट अ मिनट, पोल और फोकस के बीच बन रहा है। ठीक है,
और पोल और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, इस पॉइंट पे रखा जाए, इफ वी प्लेस इट हियर, देन वेयर द इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. नाउ यू सी all the light rays traveling through center, or all the light rays that a light rays from the head of the object. Suppose all the light rays that is just transmitting from the head of the object. ये जो हेड है, ये हेड से ऐसे कुछ ऐसे इस तरीके से ट्रांसमिट कर रहा है कि वो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उससे पास करेगा, कुछ इस एंगल से फॉल कर रहा है मिरर के ऊपर कि वो कैसे बच जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला है. ठीक है, वो कैसे जाने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला है. ठीक है, मतलब इस तरीके से कोई लाइट रेस को पास किया जाएगा तो वो क्या करेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में धक्का लगने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा कौन सा दिशा में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्प्लेस करना शुरू करेगा. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरना शुरू करेगा. और फिर एक लाइट रेस अगर इस तरीके से मान लिया जाएगा कि ये फॉल कर रहा है, रूल नंबर 4 के मुताबिक ये फॉलो कर रहा है कहाँ पे, पी पॉइंट पे फॉल कर रहा है. मान लो कि ये लाइट रे कहाँ पे फॉल कर रहा है, पी पॉइंट पे. ठीक है, और पी पॉइंट पे फॉल करने के टाइम में ये कुछ एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेम एंगल को रिपीट करके यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा. कहाँ पे बनेगा इमेज, कुछ इस तरीके से बनेगा, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे बनेगा. और रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा सपोज. ठीक है, सपोज कि ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे. तो क्या सिनेरियो यहाँ पे देखा जा रहा है कि हम लोग का जो ये 1 नंबर रे है, 2 नंबर रे है, ये दोनों ही तो हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये जो चल रहा है किस दिशा में चल रहा है, ये इन्फिनिटी के तरफ चल दिया, और इन्फिनिटी में जाके ये मीट करने का पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं है. क्यों, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है. मतलब ये इस दिशा में चलेगा कि ऐसे चलेगा कि इन दोनों के बीच कंटिन्यूअसली जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो बढ़ते ही जाएगा. मतलब ये दोनों इस तरफ तो कभी भी इस तरफ जाके मीट नहीं करने वाला है, मतलब इस तरफ जाके कभी भी ये लोग मीट नहीं करने वाले हैं. ठीक है, तो इन लोग का जो इमेज है वह कहाँ पे बनेगा, वो ऑब्जेक्ट का मतलब मिरर का पीछे की तरफ बनेगा. कुछ इस हिसाब से बनेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जा रहा है वो क्या प्रिटेंड करेगा, उसको हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग को लगेगा कि मिरर के भीतर से आ रहा है कुछ लाइट. ठीक है, और ये जो 2 नंबर लाइट रे है, 2 नंबर लाइट रे को ऑब्जर्व करेंगे तो इसको भी लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट मिरर के भीतर से आ रहा है. और कौन सा पॉइंट से आ रहा है, कुछ दूर पे मिरर के भीतर बहुत दूर के बाद एक पॉइंट है, जो पॉइंट की है ये मानो कि मेरा ए डैश है. ठीक है, और ए डैश पॉइंट से इसका आ रहा है लाइट रेस, दैट इट सीम्स, एंड देयर विल बी आवर प्रिंसिपल एक्सिस, देन द इट्स बेस विल बी एट प्रिंसिपल एक्सिस. कहाँ पे बनेगा इसका बेस, इसका बेस बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस में. तो हेड क्या हो गया, अभी हेड अपसाइड था, अपसाइड ही रह गया. ठीक है, तो क्या हुआ, जो मिरर का जो इमेज बन रहा है ये 6वां केस में, यहां पे आ गया हम लोग का ट्विस्ट. क्या हो गया कि रियल नहीं बन रहा है, मतलब इमेज इज नॉट फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग वर्चुअली एंड इट इज फॉर्मिंग बियॉन्ड द मिरर. ठीक है, और इनसाइड द मिरर इट इज फॉर्मिंग. ओके, एंड आफ्टर we judge the image, we found that the image is erect. Why? Because the object's head is upside and image head is also upside. That means what kind of image is forming here, the image formed is erect here. इमेज कैसा बना, इमेज बना हम लोग का पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन है इनसाइड द मिरर, और इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर बोलेंगे. ठीक है, सेकेंड जो है नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, नेचर ऑफ द इमेज होगा हम लोग का वर्चुअल. वर्चुअल क्यों, because we cannot get such kind of image forming on the beyond the means inside the mirror. If the image is forming, then we are unable to place a screen where we can see the image. Only we can see the image by looking to the mirror. हम लोग मिरर की तरफ देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इमेज बन रहा है, लेकिन इमेज वो कहाँ बन रहा है, वो भीतर की तरफ बन रहा है. इमेज है कि कहाँ पे बन रहा है, वो कंकेव मिरर के भीतर की तरफ बन रहा है. ठीक है, तो वो हो गया वर्चुअल. और कैसा होगा, वो इरेक्ट होगा. हाउ इट विल बी, इट विल बी इरेक्ट. एंड द साइज ऑफ द इमेज विल बी, साइज ऑफ द इमेज इज वेरी एनलार्ज्ड, दैट विल बी enlarged. ऑब्जेक्ट कितना था, ऑब्जेक्ट तो छोटा सा था लेकिन enlarged. ठीक है, ऑब्जेक्ट तो छोटा सा था लेकिन इसका जो इमेज बना, ये इमेज काफी बड़ा बन रहा है. ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बना, ठीक है, लेकिन इसका जो इमेज है वो काफी बड़ा बन रहा है. तो ये 6 केसेस हम लोग को याद भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आगे चल के देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो इमेज है, इमेज का सॉरी जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये सब लेके हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना होगा, जिसको जो न्यूमेरिकल हम लोग डिपेंड करके, मतलब मिरर फार्मूला बोल के एक फार्मूला होगा, उस फार्मूला में डिपेंड करके बनाएंगे. ठीक है, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ पढ़ेंगे हम लोग यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. और कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ सा यूज किया जाता है, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर भी चलिए बोल देते हैं इसी क्लास में. तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर.
और यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर कहाँ पे होगा? फर्स्टली डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ENT का जो डॉक्टर सब है, ईयर नोज थ्रोट, वो सब एग्जामाइन करने वाला जो डॉक्टर है वो डॉक्टर साहब, फिर ENT डॉक्टर्स और फिर डेंटिस्ट जो है हम लोग का, वो लोग यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर को। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उन लोग के पास एक लाइट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, तुम्हारा मुंह के भीतर वो लाइट घुसा देगा ऐसे करके, और तुमको क्या देखे, वो लोग क्या एग्जामिन करेगा? दे विल एग्जामिन योर टीथ, and to examine your teeth they need to produce a great light source there, and they use this concave mirror to reflect to see the position of the teeth or the fault that is present on the teeth, ठीक है। वो तो छोटा सा कुछ हिस्सों में आपका प्रॉब्लम होता है मुंह के अंदर, अगर टीथ में प्रॉब्लम हो गया तो उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए डॉक्टर क्या करता है? ये कॉन्केव मिरर को यूज़ करता है, ठीक है। ENT डॉक्टर्स, फिर डेंटिस्ट, ये सब यूज़ करते हैं। फिर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है सोलर पैनल के साथ साथ, मतलब कभी कभी रेडिएटर में, मतलब यहाँ पे मान लो कि इन्फिनिटी से सनलाइट आ रहा है, तो उसको अगर कॉन्केव मिरर से ऐसे करके बेंड कर दिया जाएगा तो क्या कहाँ पे बनेगा? वो फोकस पे बनेगा, कुछ एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा। तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये रेडिएशंस को मतलब सोलर डिवाइस का जो रेडिएशन है उसमें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वो बनता है, टू कॉन्सेंट्रेट द solar radiations in some solar heating device, कुछ सोलर हीटिंग डिवाइस होगा, वो सब में बन सकता है, ठीक है। वो सब में ये कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। फिर कहाँ कहाँ करते हैं? शॉपिंग मॉल में भी करते हैं, फिर जो नाई का दुकान है उसमें भी करते हैं, कभी कभी मेकअप रूम में भी, ये सब जगह पे हम लोग ये कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। वी डू यूज ऑफ दिस कॉन्केव मिरर इन सच काइंड ऑफ एरियाज ऑल्सो, एंड मेनी मोर अदर यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर is seen in our daily life that you find out yourself. Let's see. Okay, so in this class we have covered the entire discussion about the concave mirror. So in the next class we are going to cover the entire discussion of a convex mirror along with the mirror formulas, the formula for magnification, and if possible we will try with some numericals depending on that. So till then, take care, bye bye, thank you.